غربت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ حالیہ چند سالوں میں مہنگائی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ مہنگائی سے متوسط طبقہ کس حد تک متاثر ہوا ہے، آگاہ کریں گے آپ کو اسی بارے میں۔ غربت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ حالیہ چند سالوں میں مہنگائی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی سے متوسط طبقہ کس حد تک متاثر ہوا ہے، اسی حوالے سے جان لیتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ سہیرہ طارق، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ کچھ سالوں میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کا گزارا کرنا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ جنوبی پنجاب خصوصاً اگر ہم ملتان شہر کی بھی بات کریں تو یہاں پر حالیہ کچھ عرصے میں مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور مہنگائی جو ہے اس کے بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ہمارے جو ملکی حالات ہیں، اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے جہاں لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، ملکی معاشی اور معاشرتی اور سیاسی جو عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ڈالر کا ریٹ بڑھ جانا اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہونا مہنگائی کی بڑی وجوہات ہیں۔ ایسے میں ایک عام آدمی کس طرح سے گزارا کر رہا ہے، اسی حوالے سے میں ایک گھر میں موجود ہوں جہاں پر ایک خاتون اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے محنت مشقت کرتی ہیں۔ ان کے شوہر نہیں ہیں، یہ خود ہی اپنے گھر کا نظام کس طرح چلا رہی ہیں، مہنگائی سے کتنی متاثر ہوئی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا مہنگائی سے کتنی پریشان ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ مہنگائی سے میں بہت پریشان ہوں، گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو سکول بھی چھڑوا لیا ہے۔ اسی مہنگائی کی وجہ سے میرے سے فیس اور سکول کے اخراجات وہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے میری بیٹی گھر میں بیٹھ گئی ہے اور دکان سے اس سے گزارا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت ہم مشکل سے وقت اپنا وہ کر رہے ہیں۔ دکان کا سامان تو میں نے اپنی بیگ پہ لے آتی ہوں، موٹر سائیکل لی ہوئی ہے میں نے، کہ گھر کا خرچہ بہت مشکل سے میرے سے ہو رہا ہے، کہ یہ سامان بھی میں ادھار پیچھے بڑے دکانداروں سے لے کے آتی ہوں اور ان کے پیسے واپس دینے ہوتے ہیں، جو ان میں سے بچت ہوتی ہے ان کے ذریعے میں اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہی ہوں۔ کہ بجلی کے بل بھی بہت مشکل سے بہت زیادہ آ رہے ہیں، جو ہم نہیں پے کر سکتے۔ مہنگائی اتنی ہو گیا ہے، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں کہ ہماری اتنا۔ دال، روٹی، سبزی کے کیا ریٹ ہیں، پچھلے سال کی بات کریں یا ابھی کی، کتنے؟ اب تو بہت دال کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، سبزیوں کا ریٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے، پچھلے سال سے تو بہت زیادہ، تقریباً بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے کہ ہم کو سالن پکانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں بچوں کو کبھی تھوڑا بہت اس طرح روکھی سوکھی کھلا کے گزارا کر کے بچوں کو سلا دیتی ہوں۔ یہ دکان ہے تو صحیح، نام تو دکان کا ہے، لیکن دکان سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ہم بہت پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، ان کی مہربانی ہوگی ہم غریبوں پہ۔ جی، پاکستان میں ایک، بلکہ جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ ہی 2 مرلے کا ان کا گھر ہے اور بالکل چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے، جس میں چھوٹی موٹی جو ضرورت کی کچن میں استعمال کی چیزیں ہیں وہ یہ یہاں سے فروخت کرتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم ہو، روٹی ہو، دال سبزی، وہ بھی کھلانا اب جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سہیرہ طارق، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں گے اسموگ کے حوالے سے۔ کمشنر ملتان عامر خٹک اسموگ کی روک تھام کے لیے متحرک، آلودگی کا باعث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمشنر کا انسداد اسموگ کارروائیاں تیز کرنے کا حکم ہے۔ بٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے احکامات۔ کمشنر کا کہنا تھا کوڑے کو آگ لگانے والوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا۔ کمشنر کے احکامات پر محکمہ ماحولیات کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایک دن میں 48 بھٹوں کو 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پرانی ٹیکنالوجی پر قائم 9 بھٹے سربہ مہر کر دیے گئے ہیں۔ مالکان کے خلاف مقدمات درج۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر مہر شمشاد کا کہنا تھا کہ چیکنگ کے دوران 29 گاڑیوں کے چالان کیے گئے اور 4 گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے۔
कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक हैं। कमिश्नर का इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म है। कमिश्नर ने कहा कि भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। कूड़े को आग लगाने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि अहकामात पर महकमा माहौलियात का इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन जारी है। एक दिन में 48 भट्टों को 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नियाजी, मजीद हमें इसी बारे में अपडेट करेंगे। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, माह अक्टूबर का जब से आगाज हुआ तो स्मोक का खतरा भी मंडराने लगा है, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हिदायत जारी की थी तमाम तक कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को कि अपने अपने अजला में और डिवीजन में स्मोक के खात्मे के हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराने के हवाले से इक़दाम की जाए। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान ने अहकाम जारी किए हैं कि शहर भर में और पूरे जिला और डिवीजन में कहीं भी अगर पूरा क्रिकेट को आग लगाए जाने का वाक़या हुआ तो इस हवाले से वहाँ पर फोर्स पर कार्रवाई की जाए। और इस समझ से महकमा माहौलियात को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो शहर भर के और दीगर नवा के जितने भी भट्टे हैं उनको चेक करें और जिन जिन जगहों पर जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उनको सील किया जाए और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्टेज में भी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, एक दिन में 48 भट्टा जहाज को चेक किया गया, उनको 20 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया है जिन्होंने अभी तक जिगजैग टेक्नोलॉजी को फाल नहीं किया था। उसके साथ साथ 4 भट्टा मालिकान को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 3 को नोटिस जारी किया गया। उसके साथ साथ अगर हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बात करें तो 125 गाड़ियों को चेक किया गया है, 29 को चालान किया गया और 4 गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया गया है जिन पर फिजाई आलूदगी का बहस बन रही थी। इसी तरह फसलों की बाकियात के हवाले से बात करें तो इंतहाई सख्त अहकाम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फसल काश्त होती है, उसके बाद जब कटाई के बाद फसलों को जला दिया जाता है उसकी बाकियात को, तो इस मामले पर 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 1,80,000 रुपए जुर्माना किया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेज की बात करें तो 9 इंडस्ट्रियल यूनिट की इंस्पेक्शन हुई है, 5 को नोटिस जारी हुए हैं, 1 सील हुआ है और 1 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नियाजी तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे रहीमरा खान में असातिज़ा का सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करके एहतजाज। टीचर यूनियन और एपका सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं कि निजकारी से बच्चों से 2 से 5 हज़ार फीस वसूल की जाएगी। आपको रहीमरा खान से खबर दे रहे हैं, असातिज़ा का सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करके एहतजाज। टीचर यूनियन और एपका सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों की नारेबाजी जारी है। आमिर भट्टी हमें मजीद अपडेट करेंगे। बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है। रहीमरा खान में जिले भर के सरकारी कॉलेजेस, तालीमी इदारे, स्कूल्स और इसके साथ साथ सरकारी जो दफातर हैं वो आज बंद है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की इस वक्त कलम छोड़ हड़ताल जारी है। जो क़यादत है वो सारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताया कि जो पेंशन में कटौती है वो कितनी हो रही है फी मुलाजिम की, और ये भी बताया कि जो निजकारी है उससे क्या मसाइल जो है फ्यूचर में सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशन में कटौती, जब बंदा एक सारी ज़िंदगी सर्विस करके रिटायर होता है तो 75% जो है ना वो पेंशन मिलती है और 25% वो काट के कम्युनिटी जो हमें दे देते हैं, कॉम्पिटिशन दे देते हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है ये मज़ीद उसको कम करना चाह रही है। जब बंदा रिटायर होता है, एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे ये होता है कि मैं इसका हज करूँगा या बच्चों की शादी करूँगा या मकान बनाऊँगा, तो ये हमारे हक़ से गवर्नमेंट महरूम कर रही है। निजकारी के जो है इसमें स्कूल जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अपने लोगों को दे रही है। वो इतनी कीमती अमलाक हैं जो शहरों में हैं वो अपने रिश्तेदारों को दे के उन पर कब्ज़ा करना चाह रही है। अब निजकारी हो गई तो गरीब बच्चे जो हैं वहाँ पे अक्सर पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस जो है 2 से 5 हज़ार रुपये तक होगी और वो बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमारे गरीब जो है लोग हैं जो उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा अमीरी और गरीबी का। ये तबके को 2 तकसीम किया जा रहा है हमारी कौम को 2 तबकों में। तो तफसीलन के इनके क्या मुतालबात, अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो इसी तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका तफसीलात के लिए। असातिज़ा के एहतजाज पर रहीमरा खान के ताजर और दीगर रहनुमाओं का इजहार ख्याल। कहते हैं कि पेंशन में कटौती, गिरफ्तारियां और निजकारी काबिल मजम्मत है। असातिज़ा की तजलील पूरे मुआशरे की तजलील है। मजीद क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं।
का जो बुढ़ापे का सहारा है, जिसने किसी बच्ची की शादी करनी होती है, अपने मकान तमीरात करने, सारी जिंदगी वो किराए के मकान पर रहता है, मकान लेना होता है, वो 25 लाख 10 लाख से लेकर 25 लाख तक नुकसान कराना सही बात है। जो पैफ के इदारों को दे के गरीब के बच्चे को तालीम का हक छीनना सही बात है। अगर ये सारी सही गलत बातें हैं तो फिर तालीम बाइकाट भी सही बात है। इंशाअल्लाह ताला चाहे जेलें हों, चाहे FIRs हों, चाहे गिरफ्तारियां हों, चाहे हमें घसीट के फंदे पर ले जाएं, इंशाअल्लाह ताला मेरे पूरे पंजाब के 3,38,213 असातिज़ा और एप्का के शाहीन C4 तादमे असीरान की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक ये जदोजहद, ये जंग इंशाल्लाह जारी रहेगी। जैसा कि सूबा पंजाब भर में तमाम तलीमी अदारे बाशमूल तमाम सूबा भर के मुलाजमीन, ये तकरीबन 37 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट इनको निशाने पे लिए हुए है। इनका लीव इनकैशमेंट आज से, ये मेरे एक दोस्त ने फरमाया था, 1 माह से एहतजाज जारी है। ये तकरीबन 3 माह से एहतजाज जारी है। जब से हमारी तनख्वाहों में रनक बेसक का मसला हुआ था, पेंशनर का मसला, उस वक्त से ये एहतजाज जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी मराहत, हमारे हकूक बहाल नहीं होते, ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट गवर्नमेंट थी, जो कम्यूटेशन और पेंशन के जो रेट चल रहे हैं, वो चल रहे हैं बेसिक पे जो हमारी रनिंग पे है उस पर 35% जो है वो ग्रेजुएटी हमें दी जाती है और 65% हमें पेंशन दी जाती है बेसिक पे पर, जिसमें कटौती की जाना मकसूद है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें 365 अय्याम LPR लीव इनकैशमेंट दी जाती थी, जो हम आखिरी तनख्वाह लेते थे। अब वो जो आखिरी तनख्वाह थी वो हमारी रनिंग बेसिक थी, जो हमारे क्रेडिट में छुट्टियां मौजूद होती थी उसमें गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती थी। हमारे खाते में जो छुट्टियां होती थी उसकी हमें तनख्वाह दी जाती थी। गवर्नमेंट ने एक इंतहाई गलत कदम उठाते हुए काले कानून के जरिए वो जो 365 दिन की तनख्वाह है उसको रनिंग बेसिक की बजाय इनिशियल बेसिक पे ले आए हैं, जिससे स्केल 1 से लेकर 17 तक के मुलाजमीन को 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक नुकसान हुआ है। भक्कर के असातिज़ा मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। तदरीसी निज़ाम के बाइकआउट से तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। असातिज़ा ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की गई है। मजीद जान लेते हैं असलम बलोच से। असलम बलोच, आगाह कीजिएगा मजीद तफसीलात से। हाँ जी, बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह बखर में भी असातिज़ा का एहतजाज आज भी जारी है। असातिज़ा और एप्का दोनों ने अपने दफातर की और अपने क्लास रूम्स की तालाबंदी कर दी है और क्लास रूम का बाइकाट कर दिया गया है। असातिज़ा इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज है। हम एक स्टेडियम हाई स्कूल में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आप क्या कहेंगे सर, किस तरह एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है, क्लास रूम का भी बाइकाट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुत्तफ़िका फैसला हुआ है कि हम बाहर रोड्स पर फ़िलहाल किसी किस्म की कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, आवाम के लिए कोई परेशानी नहीं हम करेंगे, लेकिन यह है कि तदरीसी अमल का बाइकाट रहेगा। उसके लिए हमारे 2 बड़े मुतालबात हैं। एक, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से जो तरामीम की गई हैं उनकी वापसी। दूसरा, हमारे जो कायदीन जो है वो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि ये जो सरकारी स्कूल हैं इनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का फैसला वापस लिया जाए, इसलिए कि ये सरकारी स्कूल गरीब, यतीम और कमज़ोर तबका के जो है वो पनाहगाह हैं, यहाँ पर वो बच्चे आकर पढ़ते हैं। और अगर ये सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज हो गए और इनमें जो है वो फीसों का स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया तो गरीब तबके के लिए तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हेडमास्टर मुनीर अहमद औलख की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। हमारे साथी जो हमारे कैदीन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बिला जवाज उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए और उसके साथ जो हमारे मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ। हमने क्लास रूम्स का तदरीसी अमल का बाइकाट किया, अभी हम सड़कों पर नहीं निकले। हुकूमत जो है वो होश के नाखन ले, उन्होंने ये मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, ताकि ये गरीब जो बच्चे हैं, गरीब वालिदैन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। और वहीं जो प्राइवेट स्कूलों को किया जा रहा है, निजकारी का ये जो अमल उठाया जा रहा है, इसको भी बंद किया जाए ताकि गरीब और गरीब तालिब इल्मों को भी इल्म के ज़ेवर से जो है वो आरास्ता किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज का छठा रोज है। तालीमी बाइकाट से तलबा तालीम के हुसूल से कासिर हैं। सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का मुकम्मल बाइकाट है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मुश्ताक भुट्टा।
اساتذہ کے مطالبات کے حق میں احتجاج کو آج چھٹا روز ہے اور تعلیمی بائیکاٹ کی وجہ سے طلباء کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے۔ اس وقت میں لودھراں کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں موجود ہوں، جہاں پر اساتذہ تو ڈیوٹی پر موجود ہیں لیکن طلباء کو تعلیم نہیں دی جا رہی۔ میرے ساتھ یہاں پر ٹیچرز یونین ایسوسی ایشن کے صدر رانا فاروق صاحب بھی موجود ہیں۔ رانا صاحب، تاحال مطالبات پورے نہیں ہوئے، کہاں تک معاملات پہنچے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی کہ پنجاب بھر میں تدریسی بائیکاٹ جاری ہے اور ڈینگی ایکٹیویٹی کا بائیکاٹ جاری ہے۔ ہمارا سیدھا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جس قانون کے تحت ہمیں بھرتی کیا گیا تھا، جس آرڈیننس کے تحت ہمیں بھرتی کیا گیا تھا، جس معاہدے کے تحت ہمیں بھرتی کیا گیا تھا، اس معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ ہمیں ایک اسپیشل الاؤنس دیا جاتا ہے جب ہمارا ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، اور جب وہ ریگولر ہوتا ہے تو وہ اسپیشل الاؤنس ختم کر دیا جاتا ہے 5,000 پر منتھ، تو وہ ہمیں پینشن اور گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ہمارا گورنمنٹ سے یہ معاہدہ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں تو ہمیں اپنا معاہدہ جو آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے، اس کی پاسداری کی جائے۔ کوئی مطالبات پورے ہوئے؟ کوئی مطالبہ نہیں پورا ہوا، گورنمنٹ ٹچ سے مس نہیں ہوئی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو درس و تدریس دینا چاہتے ہیں، ہم قطعاً نہیں چاہتے، ہم پرامن ہیں، ہم اساتذہ ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں۔ ہمارے اگیگا کے قائدین کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے ہیں، گورنمنٹ اوچھے ہتھکنڈوں پہ آ گئی ہے۔ آج بھی ہیلتھ کے لودھراں کے 2 بندے سسپینڈ ہوئے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس دائرہ کار کو وسیع کر دیں گے۔ نظام تدریس بھی یہاں پر معطل ہے اور ڈینگی سمیت دیگر جو اسکولوں کے متعلقہ معاملات ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے۔ اساتذہ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں تاکہ ان کا جو نظام تدریس ہے وہ شروع ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مشتاق بھٹا۔ ملتان کے پارکنگ سٹینڈز پر فیس وصولی کا معاملہ ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ سٹینڈز مافیا روزانہ شہریوں سے لاکھوں روپے وصول کرنے لگے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں رانا بلال سے۔ رانا بلال، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ بات کی جائے کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آنے والے پارکنگ سٹینڈز کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے 2021 میں فیصلہ دیا تھا کہ جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں پارکنگ سٹینڈز ہوں گے ان سے جو ہے موٹر سائیکل اور کار کی پرچی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ میں اس پر موجود ہوں، میرا کیمرہ مین دکھا سکے، مال پلازا موبائل مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں یہ پلازا آتا ہے۔ یہاں پر جو ہے موٹر سائیکل کی فیس جو ہے وہ 20 روپے وصول کی جا رہی ہے، جبکہ کار کی فیس جو ہے وہ 50 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ سے جب موقف لینے کی کوشش کی گئی اسی حوالے سے، تو کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ کا بھی یہی موقف تھا کہ جی کہ ہماری جانب سے کوئی پیسے وصول نہیں کیے جا رہے، انجمن تاجران ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں جو یہاں پر جو ہے پیسے وصول کرتے ہیں، کوئی ریونیو کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جو شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جنہوں نے 20 روپے موٹر سائیکل کی فیس دی ہے۔ 20 روپے لے رہے ہیں، ہر دفعہ 20 روپے لیتے ہیں، ایسے بائک بھی نہیں دیتے۔ اچھا، ہاں جی، 20 روپے وصولی کی جاتی ہے۔ کیا انتظامیہ سے مطالبات ہیں؟ مہربانی کریں ہمارے ساتھ، اتنی مہنگائی بڑھا رکھی ہے ہمیں، اگر ہم مزدور آدمی ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ میں ابھی آیا ہوں، میں نے 20 روپے دیے ہیں ٹوکن کے، اور میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ٹوٹل پورے پاکستان میں سٹینڈ فری ہونے چاہیے، کوئی سٹینڈ کی کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے، فری ہوں سٹینڈ، اور یہ انتظامیہ خود اپنے انڈر لے۔ یہ جو پارکنگ مافیا یہ 10 کی جگہ 20 اور 20 کی جگہ 30 لیتے ہیں، پورے پاکستان میں سٹینڈ فری ہونے چاہیے۔ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں جتنے بھی پارکنگ سٹینڈز ہیں، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پارکنگ سٹینڈز ہیں ان کو فری ہونا چاہیے۔ اس انتظامیہ کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ پیسہ جتنا بھی دن کا اکٹھا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہے، کوئی اس کا پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جی بہت شکریہ آپ کا رانا بلال، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بلیٹن میں رک کریں گے پیٹرولیم کی قیمتوں کی جانب۔ کمی سے ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی کمی آئی ہے۔ بہاولپور سے لاہور تک فی سواری 50 روپے کمی کی گئی ہے۔ بہاولپور سے کہروڈ پکا اور میلسی تک 20 روپے کمی کی گئی۔ بہاولپور سے لودھرا کے کرایوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ کرایوں میں کمی کو مسافروں نے خوش عین قرار دیا ہے۔ محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں تفصیلات سے۔
इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में, जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे पूरे नज़रियात लेने के बाद कुछ मुसाफिरों के साथ और एक मुसाफिर अड्डा पर जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं लाहौर के लिए और दीगर जगहों के लिए, जो गिरदो नवाह है बहावलपुर की जो तहसीलें हैं वो तकरीबन 70 से 80 या 100 किलोमीटर के फासले पर है, जैसे अहमदपुर, हासिलपुर और यजमान थोड़ा सा नज़दीक है और इसके साथ खैरपुर थोड़ा सा नज़दीक है। लेकिन इनके किरायों में जो है वो कमी कर दी गई है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों की कमी के बाद इनके किरायों में कमी कर दी है, और जो लाहौर तक या इस्लामाबाद तक सवारियाँ यहाँ से मुसाफिर जाते हैं बहावलपुर से, उनके भी किरायों में कमी कर दी गई। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे जानते हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं आप और कितने का टिकट लिया और कितनी कमी हुई है? ये लिखा हुआ है 1050 रुपये और अभी 1000 रुपया लिया है। बहावलपुर से चीचावतनी जा रहे हैं। 50 रुपये कम हो गए? 50 रुपये कम हो गए। तो इसे खुशाइंद करार देते हैं आप? बस खुशाइंद है। हाँ जी, खुशाइंद है कि जितना किराया पेट्रोल कम हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने 50 रुपये कम कर लिया है। कैलकुलेशन की होगी तो उसके हिसाब से कम किया। मुसाफिर तो बहस नहीं करते, उन्होंने तो जाना ही होता है चाहे जितना किराया हो जाए। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है, क्या आप समझते हैं कि बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। बेहतर हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। किराए ज़्यादा कम होना चाहिए थे, क्योंकि पहले ये बढ़ाते रहे हैं, जब कम होता है करते ही नहीं है। अभी तो ज़्यादा थोड़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने थोड़ा 50 रुपये का फर्क डाला है। कम आप समझते हैं कि कम, ये बहुत कम करते हैं? मैं इससे ज़्यादा होना चाहिए कम। ज़्यादा कम होना चाहिए? जी जी। अच्छा, ये कम कर, आप समझते हैं कि पेट्रोल की जब कीमतें कम होती हैं, जो चीज़ें शहरों में भी चीज़ों की बढ़ते इजाफे होते हैं और पेट्रोल की कीमतों में, गाड़ियों के किरायों में भी जो इजाफा होता है, ये कम हुआ है या इसको मजीद होना चाहिए? हुकूमत को क्या बताना? किराया तो कम हुई, आप लिखा हुआ है 1050 रुपये, 50 रुपये कम कर दिए। हर शहर का 50 रुपये कम किया इन्होंने। जैसे फासला बढ़ता है वो 50 ही तो नहीं रहना चाहिए, वैसे थोड़ा सा अगले शहर का, जैसे चीचा के 50 रुपये कम है, कमालिया का 70 हो जाना कम है, अगर लाहौर का और कम हो जाना चाहिए। वो एक ही रेशियो बनाइए 50-50-50। स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा, आप स्टूडेंट लग रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है जब पेट्रोलियम की कीमतों में कमी होती है, किराए में कमी बड़ी थोड़ी? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे हालात के हिसाब से देखा जाए तो अब देखें गरीब आदमी क्या कर सकता है। चीनी का रेट देखें, गेहूँ का रेट देखें। हमारे देखने में इमरान खान है थे, ठीक है, उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं। की कीमतों में, चले ठीक है, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी से कुछ फर्क पड़ता है मुआशरे में? थोड़ा बहुत फर्क पड़े तो वो क्या फर्क होता है। अब 50 रुपये आप घटा देते हो और 60 रुपये बढ़ा दो, उसमें फर्क तो ना हुआ। ज्यादा कमी होनी चाहिए। ज्यादा कमी होनी चाहिए ना महंगाई के साथ। इस हवाले से हम जानते हैं, एक हमारे साथ मौजूद है अड्डा मैनेजर भी। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने किराए में कमी कम की है। जिस हिसाब से डीजल कम हुआ है पिछली दफ़ा कोई, अभी आप सुन रहे हैं जी, लोगों का कहना है कि ये जो किराए में पेट्रोल की कीमतों के में कमी के बाद जो किराए में कमी की गई है वो बड़ी थोड़ी की गई है, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 40 रुपये एक ह्यूज रकम होती है जो पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन उसकी निस्बत जो दूसरे शहरों के किराए हैं उनमें कमी कम की गई है। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे, लिया में मां और बच्चे की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए 7 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर खालिद परवेज ने सीईओ हेल्थ के हमरा मुहिम का इफ्तिताह किया है। कहते हैं 5 साल तक की उम्र के बच्चों को स्क्रीनिंग की जाएगी। ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों को फूड सप्लीमेंट फ्राहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जाहिद सरफराज। बिल्कुल जी, DH अस्पताल लिया में ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं उनके हवाले से एक ख़ुसूसी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अगर बात करें डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब के साथ साथ CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज, अगर बात करें तो MS DH अस्पताल और यहाँ पर डॉक्टर साहबानों ने इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं, सर आज की मुहिम के हवाले से फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंपेन शुरू किया, इसको कहते हैं मॉक मैस कैंपेन। इसमें जो बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है, उनकी ग्रोथ ठीक नहीं हो सकती और जो माएँ जो हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनका सर्वे किया जाएगा और जो ऐसी माएँ और बच्चे मिलेंगे जो कि कमज़ोरी का शिकार हैं, उनको फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फराहम किए जाएंगे। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाएगी कि वो किस तरह की फूड इस्तेमाल करें कि उनके बच्चे भी सेहतमंद हों और उनकी माएँ भी सेहतमंद हों।
मैं सदस्यों से आप फरमाएगा ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉक कैंपेन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यूनिसेफ की सपोर्ट से आज कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, जिसका बाकायदा आगाज डॉक्टर साहब ने फरमा दिया आज। तो ये कैंपेन हमारी सिर्फ पूरा वीक चलेगी। 3 हमारे कवर्ड एरिया हैं और 3 अनकवर्ड में हैं। तो हमारा एज पर प्लान टीमें रवाना हो गई हैं और जाके बच्चों को, मदर्स को स्क्रीन करेंगी। जब मदर्स हमारी जो मेल नोरिश्ड होंगी, जिनका ग़िज़ाई कमी का शिकार होंगी, उनको हम फूड सप्लीमेंट भी देंगे। और इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी कैंपेन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ताकि हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेटस बेहतर हो जाएगा। आज 6 रोज़ा कैंपेन है। यहाँ पर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन साहब मौजूद। सर, DHP अस्पताल में क्या इक़दाम किए गए? इसके लिए अरेंजमेंट्स की गई हैं। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनकी जो है देखेंगे कि वो जो है ग़िज़ा की कमी का शिकार तो नहीं है। अगर वो ग़िज़ा की कमी के शिकार हैं तो यहाँ हम सप्लीमेंट फूड उनको देंगे, ताकि उनकी जो है सेहत बेहतर हो सके। इसी तरह उनकी माएँ जो आएंगी उनको भी देखेंगे कि वो ग़िज़ा की कमी का शिकार तो नहीं है। उनके लिए टैबलेट्स और मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ वो भी हम उनको देंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज IRMNC डॉक्टर मुजम्मिल करीम और दीगर यहाँ पर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और आज से बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।